Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Today's topic is looping in QBasic. Students, in the previous classes, you have studied about the programming features of QBasic and write computer programs using let, input, print, CLS and rem statements. You will have studied about conditional controlled statements, i.e. go to, if then and if then else, etc. In this chapter you will learn about looping statements. तो प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि QBasic क्या होता है, इसमें कैसे कैसे हम स्टेटमेंट्स को अप्लाई करते हैं. जैसे हमने कैसे जाना था कैसे आप लेट को आप अप्लाई करते हो, प्रिंट, CLS एंड रेम आपकी स्टेटमेंट्स इसमें अप्लाई की जाती हैं. दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में भी हमने जाना था, जैसे कि गो टू, इफ देन एल्स एक्सेट्रा. इस चैप्टर में हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. What are loops? Many a times it becomes important to repeat a particular set of statement in a program for certain number of times or till a condition is met. Such repetitions are carried out with the help of loops. For example, you want to print your name 10 times on the monitor. You could do this by writing a program in the following way. Print double quotes Sangini Sharma, print double quotes Sangini Sharma ... 10 times. The smarter way to doing this would be using a programming tool known as loops. A loop is an arrangement that repeats a set of statements till the given condition remains true. Every repetition of a loop is known as iteration. Iteration means to repeat something over and over again. To form a loop, we need to create an arrangement within our program to help it keep track of how many times the repetition of a particular instruction has taken place. This arrangement is provided with the help of a counter. A counter is a variable that keeps a track of the numbers of times a particular instruction or set of instruction has been executed during a loop. A counter needs two things in order to function: an initial value and increment value. तो लूपिंग क्या होता है? लूप क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमें रिपीट करना होता है. तो ये जो रिपीट होता है ये आपका क्या बन जाता है, फिर एक चेन बन जाता है. ये चेन ही आपका एक लूप कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना नाम जो है 10 टाइम्स लिखना है तो आप क्या कमांड देते हो, आप प्रिंट फिर अपना नाम लिखते हो डबल कोट्स के अंदर और फिर आप इसको ... 10 टाइम्स के साथ, मतलब आपका जो नाम है वो आपको 10 टाइम्स क्या करना है, वहाँ पे मेंशन करना है. तो ये आपका जो नाम है जो 10 टाइम आ रहा है यही आपका लूप बन जाता है. इसको आप स्मार्टर तरीके से भी कर सकते हो, एक प्रोग्रामिंग को यूज करके, प्रोग्रामिंग टूल को यूज करके, जिसको हम लूप्स कहते हैं. लूप आपका अरेंजमेंट ऑफ रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो आपको एक ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करता है. मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है क्योंकि आप एक लूप को क्रिएट कर रहे होते हो. तो इसमें आप क्या करते हो, उसको शॉर्ट करने के लिए, अपना टाइम को आप सेव करने के लिए, तो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल लूप को आप यहाँ पे यूज़ करते हो. अब लूप को कैसे फॉर्म किया जाता है, आपको इसके लिए अरेंजमेंट ऑफ प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो आपको काफ़ी रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है. ये अरेंजमेंट जो होता है ये आपको काउंटर की हेल्प से मिल जाता है. एक काउंटर जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है जो आपके ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स को क्या करता है, इसको रिकॉर्ड ये ट्रैक करके रखता है और आपको आपका जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन में ये हेल्प भी करता है. तो काउंटर को आपके दो थिंग्स की ज़रूरत होती है, एक होता है आपका इनिशियल वैल्यू एंड नेक्स्ट वन इज़ योर इंक्रीमेंट वैल्यू. The initial value is usually 0 and must be located in outside the loop. The increment value tells the program what to count by and must be located inside the loop. The advantages of using loop is that it reduces the number of instruction and also the memory space. Types of loops in QBasic. Following are the types of looping statements in QBasic: for, next, while, when, do, loop. तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू होती है ये आपकी यूजुअली 0 मानी जाती है, 0 ही होती है. जो आपके लूप के आउटसाइड
होती है। जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है ये बताती है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा और ये लोकेटेड होता है आपके लूप के इनसाइड ही। अब एडवांटेजेस क्या है आपके लूप के? जो एडवांटेज है, एक तो ये आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ ये आपके मेमोरी स्पेस को भी बचाता है। तो यहाँ पे आपके लूप्स के भी काफ़ी टाइप हैं क्यू बेसिक में। पहला है आपका for next, then it is while, when and next one is do loop. So first we are going to discuss about the for next loop. The for next looping structure instructs the computer to repeat and close statements for a given number of times. It is generally used as a counter loop when you know exactly how many times you need to execute the loop. Syntax: for less than counter value greater than equal to less than initial value to less than final value greater than less than statements of loop greater than next less than counter variable greater than. The following steps are involved in executing the for next statement. The counter variable is assigned an initial value and a final value. The difference between the final and the initial value specify the number of times the loop will be executed. The set of statements between for next statement is executed. The next statement increments the value of the counter variable and shift the program control back to the for statement. The new value of the counter variable is compared against the final value specified in the for statement. If it is still less, then the whole process is repeated. If the value of counter variable exceeds the final value, the statement after the next is executed. So आपका जो for next loop होता है ये आपका लूपिंग स्ट्रक्चर माना जाता है जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि आपकी जो एनक्लोज स्टेटमेंट है वो रिपीट की जा सके टू द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये जनरली यूज़ करता है आपके काउंटर लूप को और साथ ही साथ ये उसे बताता है कि कैसे आपके लूप को एग्जीक्यूट करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम से एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे सिंटेक्स आपको बताया गया, रूल आपको बताया गया कि कैसे आप फॉर नेक्स्ट रूल को आप लिखते हैं। अब यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स दिए गए हैं जिससे आप फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका जो काउंटर वेरिएबल होता है ये आपका असाइंड करता है एक इनिशियल वैल्यू को और एक फाइनल वैल्यू को। अब इनके बीच का डिफरेंस होता है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो आपके टाइम्स है उनको आपको स्पेसिफाई करना होता है, वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना होता है जिन्हें आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जो सेट होता है आपका स्टेटमेंट का बिटवीन फोर एंड नेक्स्ट ये आपके एग्जीक्यूट किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका वैल्यू ऑफ काउंटर को इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी न्यू वैल्यू होती है काउंटर वेरिएबल की ये कंपेयर की जाती है अगेंस्ट द फाइनल वैल्यू को। अगर आपकी फाइनल वैल्यू लेस होती है तो ये आपका जो होल प्रोसेस है ये रिपीट किया जाता है। अगर आपकी जो वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल है वो एक्सीड होती है, वो ज़्यादा आगे चली जाती है फाइनल वैल्यू से, तो आपका जो स्टेटमेंट है आफ्टर द नेक्स्ट वो आपका एग्जीक्यूट किया जाता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। Example 1, program to show the value of a counter variable in each iteration of the loop. CLS for CT equal to 1 to 5, print double quote the current value of counter variable is colon double quote semicolon CT next CT end. Here counter CT has an individual value equal to 1 and a final value equal to 5 and counter will increment by 1. The value of CT will be printed and checked after every iteration and the loop will be exhausted once it becomes equal to 5. Example 2, program to print numbers 1 to 10. CLS for CT equal to 1 to 10. Print CT next CT end. Example 3, program to print the table of 9 up to 10 terms. CLS for CT equal to 1 to 10. Print double quote 9 asterisk double quote semicolon CT semicolon double quote equal to semicolon 9 into CT. Next CT end. Example 4, program to print multiples of entered value. CLS input double quote enter the number colon double quote semicolon num for CT equal to 1 to num print num into CT
नेक्स्ट CT एंड। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, कि कैसे आप ईच वेरिएबल को, ईच इरिटेशन को आप अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो अपने लूप में। यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आपको जो CT है उसकी इनिशियल वैल्यू है 1 एंड आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पे आप काउंटर करेंगे जो कि इंक्रीमेंट होगा विद नंबर 1। और यहाँ पे जो आपकी CT की वैल्यू है वो प्रिंट की जाएगी और उसको चेक किया जाएगा आफ्टर एवरी इटरेशन एंड आपका जो लूप है वो एग्जिस्टेड होगा वंस बाय जब तक वो इक्वल टू 5 नहीं बिकम कर देता। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, आपको यहाँ पे प्रिंट करनी है टेबल ऑफ 9 अप टू 10 टर्म्स। इसके बाद आप एग्जाम्पल 4 में प्रोग्राम आपको दिया गया है जहाँ पे आप प्रिंट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ एंटर्ड वैल्यूज को। Now for next with step clause. By default the next statement increment the value of the counter variable by 1, but we can increase or decrease the value as per our choice using step clause. Step value is optional and can be positive or negative. Syntax: for less than counter variable greater than equal to less than initial value greater than 2 less than final value greater than steep less than and greater than. Example 5 program to print first 5 odd numbers. CLS for CT equal to 1 to 10 step 2 print CT next CT end. Example 6 program to print backward counting from 20 to 0. CLS print double quote backward counting from 20 to 0 colon double quote. For CT equal to 22 step 1 print CT next CT end. अब हम जान लेते हैं कि नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टेप क्लाउज के साथ कैसे वर्क करता है। बाय डिफॉल्ट आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट होती है विद वेरिएबल बाय 1। आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपनी वैल्यू को एज पर आवर चॉइस। इसमें आप स्टेप क्लाउज को यूज़ कर सकते हो। स्टेप वैल्यू जो होती है ये आपकी ऑप्शनल होती है और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे आपको सिंटेक्स जो उसका रूल होता है ये आपको प्रोवाइड किया गया है, इसी को फॉलो करके आपके जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं इनको सॉल्व किया गया है। आपका एग्जाम्पल 5 है, आपको क्या करना है, आपको प्रिंट फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, शो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे CLS से स्टार्ट करके आपका जो प्रोग्राम है स्टेटमेंट है उसको आप लिखेंगे। एग्जाम्पल 6 में आपको क्या करना है, आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 20 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट बताई गई है स्टेप बाय स्टेप कि आप इस तरीके से आप अपनी बैकवर्ड काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now for next with accumulator. An accumulator is a variable that is used to store values. It stores the sum of numbers entered during the execution of a loop. An accumulator should be initialized at the beginning of the loop to 0. The accumulator is used when we need to enter a number during each repetition of a loop and find the sum of all these numbers when the loop terminates. Example 7 program to find the sum of 5 numbers. CLS sum equal to 0 for CT equal to 1 to 10. Input double quote enter number colon double quote semicolon and sum equal to sum plus and next print double quote the sum of entered number is colon double quote semicolon sum end. तो यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर के बारे में जान लेते हैं कि एक्यूमुलेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है जिसको आपकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके नंबर्स के सम को यूज़ किया जाता है जिनको आप एंटर करते हो अपने लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक एक्यूमुलेटर जो होता है ये आपका इनिशियलाइज होना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप टू 0। एक्यूमुलेटर जो होता है ये यूज़ किया जाता है जब आप एक नंबर को किसी भी रेपिटेशन ऑफ लूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल 7 दिया गया है, आपको प्रोग्राम दिया गया यहाँ पे टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स। तो इस तरीके से आप इसकी स्टेटमेंट को लिखेंगे।
Nested loops. Sometimes we need to repeat a set of instruction given within a loop a number of times. In such cases, we create another loop within that loop. The loop that we create within an existing loop is called a nested loop. The program given below uses an outer loop to take names from 3 users and uses the nested loop to print each name 2 times. Example, CLS for x equal to 1 to 3 input double quote enter name double quote semicolon name dollar. For y equal to 1 to 2 print name dollar next y next x end. First the innermost loop will be exclude then the outer loop. अब नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने की ज़रूरत होती है एक ही लूप के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स. इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं दूसरी लूप को विद इन दैट लूप. ठीक है, मतलब आपका जो आउटर लूप होती है वो तो क्रिएटेड ही होती है पहले से ही, हम उसके अंदर और लूप्स को ऐड ऑन करते हैं. तो जो अंदर वाली आपकी जो लूप होती है, एग्जिस्टिंग लूप होती है, वो आपकी क्या होती है, आपकी नेस्टेड लूप कहलाती है. तो यहाँ पे हम प्रोग्राम हमको दिया गया है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आउटर लूप को टू टेक नेम्स फ्रॉम दीज यूज़र्स. ठीक है, और यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप को ताकि हम हर एक नाम को 2 टाइम उसको क्या कर सके, प्रिंट कर सके. तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको CLS दिया गया है. ठीक है, उसके बाद आपको फॉर x के लिए आप 1 2 3 यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप इनपुट डालेंगे और यहाँ पे आपके जो आप देख पा रहे हैं आपका जो इनर लूप है ये आपका फॉर y से नेक्स्ट y तक है और आपका फॉर x से नेक्स्ट x तक ये आपका क्या है, आउटर लूप है. तो आपका जो इनर मोस्ट लूप है जिसको आप एक्सक्लूड करते हो अपने आउटर लूप से. Now, while when loop. This is another type of loop structure in QBasic. In case of for next loop, the statements are executed for a particular number of times, whereas a while when loop executes as long as the condition stated in it is true. The syntax of while when loop is syntax while less than condition greater than less than statements of the loop greater than when. Let us observe the following example to understand the working of the while when loop. Example 1, program to print 10 numbers, CLS a equal to 1 while a is less than equal to 10. Print a equal to a plus 1 when end. Here the counter variable a is assigned a starting value 1. The test expression a less than equal to 10 checks the current value of a in each iteration. If the value of a is less than or equal to 10, then loop is executed to print the number. The statement a equal to a plus 1 increase the value of a by 1 after each iteration. Example, program to print a square of 10 numbers starting from the number entered by the user. CLS I equal to 1 input double quote enter a name colon double quote semicolon and while I less than equal to 10 print n into n equal to n plus 1 I equal to I plus 1 when end. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं वाइल वेंड लूप के बारे में. ये एक अनदर टाइप का आपका लूप स्ट्रक्चर है QBasic का. इसमें आपके फॉर नेक्स्ट जो आपके लूप्स होते हैं वहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट की जाती है पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के, जबकि आपका जो वाइल वेंड लूप होता है ये आपका कंडीशंस को क्या करता है, स्टेट करता है ट्रू में. ठीक है, तो आपके जो सिंटेक्स होते हैं वाइल वेंड लूप के वो इस तरीके से आपको दिए गए हैं. अब आपको यहाँ पे फॉलोइंग एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है जो यहाँ पे आपको दिया गया है. ठीक है, इसमें आपका वाइल वेंड जो लूप है इसे अप्लाई किया गया है. तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देखेंगे टू प्रिंट 10 नंबर्स. इस तरीके से आप CLS से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आप देखेंगे जो काउंटर वेरिएबल a है वो असाइन किया गया है स्टार्टिंग वैल्यू 1 से. फिर आप यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे और चेक करेंगे कि जो आपका a है वो उसकी वैल्यू क्या है ईच इटरेशन में
ठीक है। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है ए की वो अगर 10 से लेस देन है या उसके इक्वल है, देन आपका जो लूप है एग्जीक्यूट करेगा उस नंबर को, वो आपको प्रिंट करके देगा। देन आपकी अगर स्टेटमेंट a इक्वल टू a प्लस 1 है तो आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 आफ्टर ईच इटरेशन। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल 2 में दूसरा प्रोग्राम जो है दिया गया है। नाउ डू लूप। Do loop is generally preferred when the number of iterations are not known beforehand. The do loop has two forms in QBasic: do while, do until. Do while loop, do until loop. This loop is executed as long as the specified condition is true. The do while loop first executes the block of statement, then checks the condition. Syntax: do curly bracket loop statement curly bracket loop while less than condition greater than. Example program to display the use of do while statement: cls x equal to 20, do print x, x equal to x plus 1, loop while x greater than 25 and this program will print the value of x once, then check for the condition. If the condition is true, it will repeat the within do loop. If the condition is false, it will not repeat the statement. The points to be understand here is that although the condition was false, yet it executed the statement once. Do until loop. This loop is similar to the do while loop, but only difference is that the execution of loop continues as long as the condition is false. Syntax: do until less than condition greater than curly bracket loop statement curly bracket loop. Example program to display the use of do until statement: cls x into 20, do until x is greater than 25, print x, x equal to x plus 1, loop ends. In this program, initially x is equal to 20. The condition x is greater than 25 will be checked. Since the condition is false, the current value of x will be displayed. Now the value of x is become 21. Loop statement shifts the control back to the do until statement. The condition x is greater than 25 will be checked again. If the condition is false, the control repeat the statement starting from print. But if the condition is true, the control shift to the next statement after loop. डू लूप के बारे में जान लेते हैं। डू लूप जनरली आपका प्रेफर किया जाता है जब आपके नंबर ऑफ इटरेशंस जो होते हैं वो आपके नोन नहीं होते बिफोर हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो डू लूप है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक डू वाइल एक डू अंटिल। डू वाइल लूप को समझ लेते हैं। ये जो लूप होती है ये एग्जीक्यूट की जाती है एज लॉन्ग द जो कंडीशन होती है वो आपकी स्पेसिफाइड होती है एज ट्रू। ये जो आपका डू वाइल लूप होता है ये आपका फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, देन ये आपकी कंडीशन को चेक करता है। इसका स्टेटमेंट आपका जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से आपका दिया गया है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है द यूज ऑफ डू वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, आप यहाँ इस तरीके से स्टेटमेंट देंगे। ये जो प्रोग्राम है ये आपका वैल्यू ऑफ एक्स को प्रिंट करेगा वंस, और आप इस कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो आपका जो प्रोग्राम है वो रिपीट करेगा विद इन डू लूप। अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो ये आपकी स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पे पॉइंट टू अंडरस्टैंड है कि यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स थी। इसका मतलब क्या था कि जो आपकी जो स्टेटमेंट है उसको एक बार में ही एग्जीक्यूट कर लिया गया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट डू अंटिल लूप। ये जो लूप है ये सिमिलर है डू वाइल लूप के ही, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ लूप होता है ये आपका एज लॉन्ग एज कंटिन्यू चलता रहता है एज कंडीशन ऑफ फॉल्स, जब तक आपकी फॉल्स कंडीशन आती रहती है। यहाँ पे सिंटेक्स आपको दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है द यूज ऑफ डू अंटिल स्टेटमेंट। आप इस तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में इनिशियली आपने देखा कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 20 दी गई है। साथ ही साथ आपसे कंडीशन पूछी गई है कि x क्या ग्रेटर देन है 25 के, ये आपको चेक करना है। सिंस आपकी जो कंडीशन है ये फॉल्स आई है तो आपकी जो करंट वैल्यू ऑफ x है वो डिस्प्ले की जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है x की वो 21 हो गई है, तो आपकी जो लूप स्टेटमेंट है वो शिफ्ट करेगी कंट्रोल बैक को टू डू द अनटिल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन 25 की, वो दोबारा से चेक की जाएगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आई है तो आपका जो कंट्रोल है वो रिपीट करेगा स्टेटमेंट को स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंट। बट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो कंट्रोल शिफ्ट है वो आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा आफ्टर द लूप। लेट अस रिवाइंड। Loops are the iteration statements which runs the particular statements for a specific number of times. For next loop, execute the statement block for a certain number of times. Step clause in for next loop is used to increase or decrease the value as per our choice. Loop within a loop is called a nested loop. The while when loop execute till the condition stated in the while clause is met. The do loop has two forms, do while and do until. The do while loop first executes the block of statements and then checks the condition. In the do until loop, the execution of the loop continues as long as the condition is false. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.